Students, please don't try it on your own. बच्चे आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन मत करो यहाँ पे। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने माइक ऑफ पोजीशन पे रखें, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा वो चैट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, अपनी वीडियो भी आप रखें। So let us start, ma'am. Respected Professor Asharam Sharma ji, Principal Government Degree College Kathua. Respected Miss Maxim Burki ji, KS, Assistant Director, District Employment and Counseling Center Kathua. Shri Surjit Kumar ji, Employment Counselor, District Employment Counseling Center Kathua. Professor Jaswinder Singh ji, HOD Physics. Hello. Professor. Hello. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Audio problem. Yes sir. Yes sir. You are audible, sir. Hello. Yes sir. You are audible, sir. Yes sir. Audible, sir. सर ऑडिबल है आप सर? प्रॉब्लम नहीं सर, ऑडिबल है आप? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर, बट योर वॉइस इज नॉट क्लियर. वॉइस इज नॉट क्लियर सर. हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके मैम. सर, विद योर काइंड परमिशन, shall we start? Sir, respected Professor Asharam Sharma ji, Principal Government Degree College Kathua. Respected Miss Maxim Gorki ji, KS, Assistant Director, District Employment and Counseling Center Kathua. Shri Surjit Kumar ji, Employment Counselor, District Employment and You are not audible, Rasta. हेलो हरकेश जी. हाँ जी सर. सर आपकी आवाज आ रही है मुझे. You are not audible. सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी टूट रही है थोड़ी बीच में. मैम को आ रही है सर. सर हो सकता है आपकी उसमें ना थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मे बी ड्यू टू दैट सर. प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी, HOD फिजिक्स. प्रोफेसर शुभ कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स. Some students are joining. Members of Career Counseling Cell, GDC Kathua, Dr. Anupama Arora ji, Dr. Pankaj Gupta ji, Dr. Barinder Singh ji, Professor Neha Mahajan ji, Professor Nisha Bhagat ji, Professor Kamaldeep Singh ji, and my dear students. Good morning to all of you. Dear students, Department of Higher Education, under able and dynamic leadership of Janab Amit Parvez Rohela, Commissioner Secretary Higher Education, has constituted psychological career counseling and placement cells for all districts of J&K. Bardari Secretary Higher Education is very keen that such career counseling programs are conducted for welfare of students, so that right direction is provided to the students as far as their career is concerned. So this activity is part of that. We at GDC Kathua, under able guidance of Bardari Principal Professor Asharam Sharma ji, who is always supportive in conduct of such activities for the welfare of students, are conducting various career awareness activities at regular intervals for welfare of students. Dear students, today's program is being organized under Manodrapan, an initiative of MHRD Government of India by Career Counseling and Placement Cell of GDC Kathua in collaboration with District Employment and Counseling Center Kathua. So I would like to thank Ms. Maximum Gorki ji, Assistant Director, District Employment and Counseling Center Kathua, for agreeing to our proposal and sparing time for our students. Dear students, today's resource person, Ms. Maxim Gorki, KS, is an alumni of Government Degree College Kathua. I do hope that her presence in today's career counseling webinar shall definitely inspire our students. She will deliver a talk on National Service Portal. Dear students, second lecture shall be delivered by Mr. Rajiv Kumar, Employment Counselor. He shall deliver a lecture on employment scenario in J&K and different employment schemes by government departments. I do hope that our students shall benefit a lot from today's career counseling webinar. Now I would like to request Bardari Principal, Professor Asharam Sharma ji, to formally inaugurate today's program and also enlighten us with his valuable thoughts. Sir. Hello. Anji, Hello. Yes sir. Good morning. Good morning to all of you. Good morning sir. Good morning sir. Am I audible? Am Yes, I sir. audible, Professor Gezi?
Very much audible, sir. So, Namaskar, respected Miss Maxim Gorki ji, KAS, Assistant Director, District Employment and Counseling Center, Kathua. Shri Surjit Kumar ji, Employment Counselor, District Employment and Counseling Center, Kathua. My colleagues of the Career Counseling and Placement Cell at GDC Kathua, and dear students. First of all, I formally welcome and extend my heartiest gratitude to Ms. Maxim Gorki ji, Assistant Director, District Employment and Counseling Center, Kathua, for agreeing to our proposal of today's webinar. I also welcome Mr. Surjit Kumar, Employment Counselor, District Employment and Counseling Center, Kathua, in this Career Awareness webinar. Dear students, Department of Higher Education, under the able and dynamic leadership of our esteemed Commissioner Secretary Higher Education, Janab Talt Pravez Rohela ji, has constituted psychological career counseling and placement units for all districts of J&K. Worthy Secretary Higher Education is very keen that such career counseling programs are conducted for welfare of students. Particularly in this pandemic situation, Career Counseling and Placement Cell of our institution is doing a wonderful job on this front and is organizing various career awareness activities in collaboration with various government agencies. Dear students, all of you are aware that government can't provide jobs to everyone. Hence, instead of completely becoming dependent on government jobs, one should also try to create jobs. You are required to become job providers rather than becoming job seekers. This is the main thrust of our government of Jammu and Kashmir as well as central government. The government can help a lot in this direction. The focus of today's career awareness program is self-employment. Today, the resource persons shall not only explain to you the various job avenues which are available on National Services Portal, but also enlighten you with different employment schemes being offered by various government departments. I hope that today's program, which has been organized under Manodarpan by Career Counseling and Placement Cell of our college and a District Employment and Counseling Center, Kathua, shall definitely provide you new opportunities in terms of self-employment. My best wishes to whole team of Career Counseling and Placement Cell. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for your valuable thoughts. Now I would like to request Ms. Maxim Gorki, KS, Assistant Director, kindly enlighten us and our students. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Good morning, everyone. Thank you, Principal Asha Ramji and Rakesh sir, GD College Kathua, for sparing their time and inviting us for this career counseling session. Being alumni of this college, I will love to be the part of this session. Truly, sir. Now, thank you, ma'am. Today our topic is employment scenario in the UT of J&K and way forward. As after graduation, being alumni and being from the same college, after graduation, the first question arises in our mind is what we will do after graduation. Either we will go after job or for some higher education like PGs or other scenarios. So, first of all, I would like to tell you about the employment scenarios in J&K कि अभी हमारे यूटी में कौन-कौन से employment scenarios जो है after graduation आप pursue कर सकते हैं, या अगर आपने higher education में जाना हो तो उसके बाद भी हमारे पास क्या-क्या scenarios हैं. First of all, जब भी हम employment की बात करते हैं तो हमारे mind में आता है कि हमारे जो state है, जो हमारी जो यूटी है, उसकी economy कैसी है. Because employment and the economy they are vis-a-vis, they are related. क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमी हमारी स्टेट की अच्छी होगी तो हमारे यहाँ पे जॉब जनरेशन जो है वो भी अच्छी होगी, वो भी ज्यादा होगी. सो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपनी JNK UT का प्रोफाइल देख लेते हैं. Am I audible to all? Yes, ma'am.
Okay, thank you, sir. So सबसे पहले जो है JNK has a very high rate of government employment with respect to total population. ये आपने वैसे भी सुना होगा जब आप नियर बाय कहीं स्टेट्स में जाते हैं, पंजाब में, हिमाचल, बोलते हैं JNK में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन इससे क्या हुआ है कि हमारे जो लोगों की टेंडेंसी है वो टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब ज्यादा चली गई है रादर देन एंटरप्रेन्योरशिप और या फिर प्राइवेट जॉब्स की तरफ। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे पास अभी कई सारे लोग होते हैं वो पीएचडी के बाद भी बोलते हैं कि हमें चाहे पियोन की मिल जाए जॉब, गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब इज नॉट द सोल्यूशन। हमें वैसे, क्योंकि एज की हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, बड़े सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि सो एवरीवन वुड बी नॉट बी एबल टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। क्यों गवर्नमेंट जॉब लुक्रेटिव इसलिए होती है कि हमें लगता है कि काम नहीं है, थोड़ा सा एक सेफ्टी रहती है कि थ्रू आउट लाइफ आपको पेंशन मिल जाएगी, और ऐसा तो आजकल सिनेरियो है नहीं है, बिकॉज यू ऑल नो आफ्टर 2010 जो पेंशन सिनेरियो है वो भी खत्म हो चुका है। नाउ वी आर ऑल अंडर द एनपीएस। सो रादर देन सीकिंग कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए जैसे मर्जी हो, तो हम थोड़ा सा अपना जो एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट करें हैं टुवर्ड्स द प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, या अपना खुद का काम आप खोल सकते हैं। उसके लिए आज हम काउंसलिंग सेशन इसलिए कर रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन दोज हु वांट टू गो इनटू कि हमें कुछ काम करना है, हमें अपना काम खोलना है, तो उनको एक हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें कि आप ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट आपको कहाँ कहाँ किस किस चीज में लोन दे सकती है, कहाँ आपको एक अपना हैंड ले आउट कर सकती है कि आपको हेल्प मिल जाए अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। बिकॉज वी डोंट, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बिजनेस क्लास से आए और उसके पेरेंट्स, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, तो बड़े सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। कोई अच्छा बिजनेस माइंडेड होता है लेकिन उसके पास इतनी मॉनेटरी वो हेल्प नहीं रहती है अपना वो बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। सो गवर्नमेंट कम विद द नंबर ऑफ स्कीम्स इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो प्रोवाइड करती है लोन्स, सो दैट कि जिसके पास बिजनेस माइंड या कुछ बड़ी अच्छी समझ है तो वो अपने आप को एक अच्छा एक एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश कर सके अपने आप को। सो फर्स्ट हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज 2011 के सेंसस के हिसाब से 1.25 करोड़ है, और 2025 में जो हमारा है कि शायद ये 1.52 करोड़ हो जाए। हालांकि लिटरेसी रेट हमारा बहुत अच्छा है, कठुआ बीइंग द सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो इस कारण हमारे यहाँ पे जो है आफ्टर पीजी और ग्रेजुएशन के बाद बड़े सारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब, जो प्राइवेट सेक्टर इन द इंजीनियरिंग या बाहर चले जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त जो 8th के बाद 10th के बाद वो बड़े सारे जो बच्चे हैं वो अपने आप को एक फील करते हैं कि हम वी लैग बिहाइंड बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट ग्रेजुएशन और पीजी। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट के पास, ठीक है। नाउ हमारा जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई यू वेल अवेयर दैट कि हमारे पास इस टाइम 9 यूनिवर्सिटीज हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस 364 है। तो हालांकि अब बड़े सारे कॉलेजेस नए भी खुल गए हैं, तो इस कारण जो हमारा, इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा एजुकेशनल पुशअप है बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे जो अब फार फ्लंग के एरिया से बनी बसोली वगैरह के लोग पहले जम्मू में जहाँ पे कठुआ में आके करते थे अपनी ग्रेजुएशन, अब उनको वहीं पे बनी में भी कॉलेज है। सो उनका जो एक मंथली जो खर्चा होता है वो भी कम हो गया, घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, एंड दे आर गेटिंग द क्वालिटी एजुकेशन इन देयर ओन विcinity। नाउ कमिंग टू द दिस JNK इकोनॉमी। सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी दैट इज एग्रो एलाइड। एग्रो एलाइड यू ऑल नो कि दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। अबाउट 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है दैट इज हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यू नो दैट इज इन मोस्टली इन द कश्मीर बिकॉज फ्रूट जनरेशन वहां पे ज्यादा होती है, वॉलनट जनरेशन वहां पे है, एप्पल प्रोडक्शन है वहां पे। तो सो हमारा जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है दैट इज मोस्टली कश्मीर बेस्ड। लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज, लाइफ स्टॉक जो है वो हमारा बैलेंस बराबर ही चल जाता है जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी। और फिशरीज जो है वो भी सीजनल है, अकॉर्डिंग टू विंटर एरियाज में ट्राउट्स वगैरह हो जाती है और यहाँ पे हमारी अपनी कार्प्स वगैरह है। सो दिस इज द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ऑफ द JNK। एंड नेक्स्ट कम्स द इंडस्ट्री। You are well aware that the Kathua is an industrial area. हमारे यहाँ पे जो है industries Kathua, Samba and Jammu. They are the three main area which are catering to the demands of the industry. Hello.
जो हमारा इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे 25% है, जो जीडीपी हमारी इसमें स्टेट की है, जो यूटी की है, उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो इंडस्ट्रीज एरिया है वो मोस्टली जम्मू, सांबा एंड कठुआ में डिफाइंड है। कठुआ में अबाउट 400 समथिंग प्लस इंडस्ट्रीज हैं। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आपके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर विल आप किसी इंडस्ट्रीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, एज यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट एंड बसोली पेंटिंग्स, कश्मीरी जो है कल्चर वहाँ पे जो है उनका भी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम काफी फेमस है। अगर किसी के पास ट्रेडिशनल स्किल्स हैं तो वो वहाँ पे भी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम में भी जो है वो अपना फ्यूचर देख सकते हैं। एंड टूरिज्म बट मेन जो है टूरिज्म हमारा है वो है कश्मीर वैली में rather than in Jammu state. You all are well aware of that. Now, first, the main thing that we were talking about today is the entrepreneurship. Entrepreneurship, what do you understand by the entrepreneurship? It means कि rather than living others' dream, you have to live your own dream. You will become what you want to be. आप ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आपका जो मन है आप वैसा ही सिनेरियो देखिए। आप ये नहीं कि अगर आपका मेडिकल रखने का मन है तो आप किसी ने जबरदस्ती बोल दिया कि नॉन मेडिकल में ज्यादा जॉब मिल जाएगी, नॉन मेडिकल में चले जाओ। तो हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप सबसे पहले अपना एरिया ऑफ फोकस और एरिया जो है कि आप किस पे ज्यादा किसमें आपकी इंटरेस्ट है आप उसको देखिए। तो इस केस में क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप आप क्यों बनना चाहिए? एक सबसे पहले क्या है कि छोटे छोटे बिजनेस जो आजकल बड़े सारे एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे प्रोग्राम्स भी चलते हैं। यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे EDI डिपार्टमेंट, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसमें क्या होता है, अगर किसी को किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि इसको मैं अपना फ्यूचर बनाऊं, तो इससे ही मैं अपना, बिकॉज व्हेन योर पैशन बिकम योर अर्निंग ना, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से वो कर पाते हैं रादर देन उसको आप उस चीज में आपको क्या होता है कि आपको बर्डन फील नहीं होता। जैसे कभी कभी हमें लगता है 10 to 5 हमारा ऑफिस है, जब हमारा किसी चीज में मन नहीं होता ना उसको हम ढंग से कर नहीं पाते। तो क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में आके किसी को लगता है कि नहीं मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो पेंटिंग ऑब्वियसली स्टार्टिंग में अगर आपको पेंटिंग करनी है या पेंटर बनना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस, बड़े सारे उनके आर्टिकल्स होते हैं, हमें पता भी नहीं होगा। तो वो चीजें जो होती हैं उस चीज के लिए आपको कौन हेल्प करेगा? EDI। अगर आप उसको आप एक अच्छी सी अपनी गैलरी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, यू नीड मनी फॉर दैट। लेकिन आपको ऐसे कोई एक टाइप का कौन पैसे देगा कि आपने जी मैंने पेंटर बनना है तो मुझे पैसे दो, तो कोई नहीं देता है। तो हम EDI जो है हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे जो आप यू जस्ट वांट टू लिव योर ड्रीम, जो आपका ड्रीम है आपको उस चीज के लिए हम हेल्प आउट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें एंटरप्रेन्योर क्या होता है क्यों बनना चाहिए? इन शॉर्ट क्या है कि हमें अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। अब जैसे अंबानी अगर वो भी सोचता है कि मैंने 9 to 5 की जॉब करनी है तो वो इतना बड़ा अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं खोल पाता। इट इज ऑल बिकॉज कि ही जस्ट वांट टू ड्रीम बिग एंड ही अचीव्ड बिग। सो आपको अगर इफ यू ड्रीम बिग यू विल अचीव इट। अदरवाइज क्या है 9 to 5 जॉब अगर आपको करनी है तो आपको वही एक पर्टिकुलर जो सैलरी है वो मिलेगी। यू आर नॉट एबल टू ग्रो समटाइम्स। आपको लगता है कई बार सीनियर्स हैं कुछ है, तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बनने चाहते हैं उस केस में क्या होगा कि यू आर योर ओन बॉस, आपको जब मन चाहे आप ऐसा कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इन द एफर्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज यू आर विलिंग टू टेक रिस्क। अगर आपके पास रिस्क लेने की वो है, हिम्मत है, तब भी आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। अदरवाइज जो रिस्क नहीं ले सकता वो नई इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकता। तो next come the difference between the wage employment and the self employment. First I will tell you what is the difference between wage and self employment. Wage employment, wage is a particular amount of the money you will get after doing some job, that is the monthly salary or something like that. इसमें क्या होता है वेज एम्प्लॉयमेंट में कि आप किसी के अंडर काम करते हैं, यू हैव अ बॉस, वो आपको बताएगा ये करना है वो करना है। जैसे हमारे नॉर्मल ऑफिस में सिनेरियो चलता है, हर किसी का बॉस होता है। आई हैव माय डिप्टी डायरेक्टर ओवर मी, डिप्टी डायरेक्टर हैज सम जॉइंट डायरेक्टर, सो देयर इज अ हायरार्की बनी होती है। तो वी हैव अ बॉस ओवर बॉस, ठीक है। उस केस में क्या होता है, यू हैव फिक्स्ड अर्निंग्स,
आपकी जो इंक्रीमेंट लगनी है वो लगेगी, डीए लगना लगनी, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नॉलेज। अगर आप अच्छा हो, अगर आप बाकियों से ज्यादा काम करते हो, जो आर मोर टैलेंटेड, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट व्हाटएवर उन्होंने जो आपको बताया होगा। इससे क्या होता है कि एक सेल्फ सैचुरेशन का लेवल आ जाता है। फिर आपको क्या लगता है, यार मैं जितना मर्जी काम करूं मुझे पैसे तो उतने मिलते हैं, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज कुछ भी कभी सीनियर्स जो होते हैं वो इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, दे डोंट वांट यू टू ग्रो, वो दे आर ऑलवेज पुलिंग योर लेग्स। तो इसमें क्या है, डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है। और सो दिस आर द नॉर्मल सिनेरियोज ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट। सो एक्चुअली टुडेज टॉपिक इज टू मेड योर माइंड, rather than become the job seeker, you will become the job providers. और job provider आप कब बनोगे? That is in the self employment, because you all know with the new time and with the changing time, जो job prospects हैं, जो government jobs हैं, जो private है, वहाँ पे saturations हो रही हैं। अब उस केस में क्या है कि अब मोस्टली जो लोग हैं वो चाहते हैं हम अपना काम खोलें। अब अपना काम खोलने का क्या फायदा होता है? एक तो ये काम है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ जॉब, प्राइवेट और गवर्नमेंट, नो मैटर, यू आर इन अ जॉब। जब आपके बच्चे होंगे या जब आपकी फ्यूचर जनरेशन होगी, दे ऑल हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस टू गेट द जॉब। उनको वैसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसे सब कुछ करना पड़ेगा टू गेट द जॉब। लेकिन इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इफ यू हैव अ बिजनेस, जो आपका फ्यूचर जनरेशन होगा, दे जस्ट हैव टू जॉइन द बिजनेस। बिजनेस तो आगे एस्टैब्लिश्ड ही होगा। सो जब आप जॉब करते हैं तो सिर्फ आप अपने लिए ही जॉब करते हैं। लेकिन जब आप किसी बिजनेस को खोलते हैं, जब कोई नया कोई स्टार्टअप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप 2 जनरेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, सो दैट कि जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया होगा उस पर वो जनरेशन उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। सो जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें सिर्फ हम अपना मतलब कि एक जो हमारी लाइफ होती है हम वहीं तक रह जाते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में we would create jobs for our generations as well as other people. So this is a main difference between the wage employment and the self employment. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और क्या होता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। आपको लगता है कि मैं इस चीज में ज्यादा अच्छा चल सकता हूँ, तो आप उस चीज को फ्लरिश कर लोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैंने 2 बिजनेस खोले हैं, इनमें से एक मेरा नहीं चल पा रहा है, दूसरे में ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप ओपन कि आप पहले वाले को ज्यादा काम दो, या पहले वाले को जिसमें आप अच्छा फ्लरिश कर रहे हो उसको आप ज्यादा टाइम दो, उसमें आप ज्यादा मनी इन्वेस्ट करो, रादर देन जिसमें आपको लॉस हो रहा है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग मी, rather than running after the job, you have to create your own job. नाउ अब हमारे यहाँ पे जो इन JNK एंटरप्रेन्योर बनने के चैलेंजेस क्या है, क्योंकि इट इज इजी टू से कि अपना काम खोलो, ये कर लो, वो कर लो, इट इज वेरी इजी। अब इस केस में आपको कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आ सकते हैं? फर्स्ट इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, दैट इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज तभी तो हम आज आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। मोस्टली जो लोग होते हैं उनका होता है ग्रेजुएशन के बाद पीजी के बाद कुछ और करो, देन वी विल स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, और अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑब्वियसली ओवर एज हो गया जब फिर हम थोड़ी छोटी मोटी नौकरियों में लग जाते हैं। सो अगर हमने अपना पहले ही माइंड बनाया है कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन मैं ये वाला बिजनेस खोलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो उस केस में आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आपको क्या होगा, आप कर नहीं पाओगे। अब कभी कभी आपके पास स्किल गैप्स क्या है, आपके पास स्किल है, मनी नहीं है, समटाइम यू हैव मनी, स्किल्स नहीं है, कभी कभी आपको अपनी स्किल्स रिफाइन करनी पड़ती है, बिकॉज एज द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव नाउ अ डेज, बीइंग मेयर कि आप मैं ये कुछ पेंटिंग कर लेती हूँ, जब मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी कर लेता हूँ, जब मैं कुछ ये कर लेता हूँ, इट इज नॉट इनफ। आपको आजकल वर्ल्ड के साथ compete करना है। आजकल बड़ी सारी हर जो ब्रांच है, चाहे वो स्टडीज की हो, चाहे वो किसी काम के लिए सीखने की हो, चाहे प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियंस की, whatever that is, there is a lot of competition. So you have to continuously refine your skills. बड़े सारे आजकल जो है प्रोग्राम्स भी चलते हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं, आपको बस ये है कि you remain in touch with the other persons, or globe में, आपको globe में, I am talking about the whole world, because nowadays because of the internet we are connected to the world. We are not connected to nowadays to the state or India or some in a country. We talk globally.
अब हमें ग्लोव के साथ ऑल इंटायर वर्ल्ड के साथ compete करना है, तो आपको स्किल जो है टाइम टू टाइम रिफाइन करनी पड़ेगी। माइंडसेट, सबसे पहले माइंडसेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू मेक योर माइंड। जब तक आपके माइंड में नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। Whatever you want to do, government job, in private job, industry, tourism, whatever you want to do, लेकिन आपके माइंड जो है that should be clean and clear कि आपको करना क्या है। Now there is a lack of finances. There comes our role. कभी कभी क्या होता है कि आपके पास सब कुछ है, स्किल है, माइंडसेट है, you are aware of all the things, but you don't have money. उस चीज में हमारे इंस्टीट्यूशंस का रोल आता है कि we will tell you कि आपको कहाँ से लोन मिल सकता है, कहाँ पे आपको कम उस पे इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, कहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब ये चीजें हम आपको बताएंगे। सो you have to keep in touch with the employment and the counseling department, not only through these webinars. Sometimes you should also visit our office because there is a counseling officer available all the time here. वो आपको बताएगा कि आपकी अच्छा ये क्वालिफिकेशन हो गई है, अब आपको आगे क्या करना है। अब इसके पास आपके पास और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आपके पास कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स आप में अप्लाई कर सकते हो, आप किसी और चीज में जाना चाहते हो, कौन सी पोस्ट्स निकल रही हैं, वो सारी चीजें काउंसिल करेगा आपको। समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू गेट गाइडेंस इन अवर हाउस, कि हमें पता नहीं चलता कि हम ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाएं, बिजनेस करें या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट। सो इन सारी चीजों के लिए हम द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड यू अ काउंसलिंग ऑफिसर इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। सो आपको कभी भी प्रॉब्लम है, either our session would be over after some time, thereafter we are available 10 to 4:30 in our offices from Monday to Saturday. You are welcome here. आप कभी भी हमें आपके पूछ सकते हो regarding these entrepreneurship, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। Lack of coordination between different departments, that is also the thing, because बड़े सारे departments हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन से क्या नहीं होता कि अगर एक स्कीम के लिए कोई एक लोन दे रहा है तो हो सकता है दूसरा भी उसी स्कीम के लिए लोन दे। अगर कोई बच्चा किसी गलत डिपार्टमेंट में आ गया लोनिंग के लिए तो वो कोऑर्डिनेट, उनको पता नहीं होता कि ये वाला लोन दूसरे डिपार्टमेंट से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बिकॉज उनको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है, यू आर नॉट अबाउट वेल अवेयर अबाउट द लोनिंग स्कीम्स or the subsidy which are running on their parallel department, so they are not able to guide you. अगर आप किसी डिपार्टमेंट के पास चले गए कि मुझे लोन चाहिए, नहीं ये लोन हमारे पास नहीं है, लेकिन वो ये they are not able to tell you whether this role is available with which department. So there is a lack of coordination between the various departments. And yeah, the last thing, that is a lack of proper support and the guidance. So for the support and the guidance, you are always welcome in our career counseling center all the days. Now I will tell you about the schemes which are available nowadays with the government departments. First is the JKEDI. JKEDI is the Entrepreneurship Development Institute. ये जो डिपार्टमेंट है ये बना ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। जो लोग अपना एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे लोन्स दिए जाते हैं। एंड इन आवर डिस्ट्रिक्ट ये डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की बिल्डिंग में ही है। तो इसमें 3 टाइप की हमारी जो है मोस्टली स्कीम्स चल रही हैं हमारे इस डिपार्टमेंट में। दैट इज अ सीड कैपिटल फंड स्कीम। सीड कैपिटल फंड स्कीम में आपको एक लोन दिया जाता है, उसमें आपको थोड़ा सा पैसा आपको डालना पड़ता है, बाकी जो है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। उस मनी को सीड कैपिटल, सीड मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अ मीगर अमाउंट ऑफ द मनी दैट इज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द बेनिफिशियरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सीड कैपिटल फंड स्कीम। कि आप छोटा सा सीड लगाओगे, उसके बाद जो बाकी की फाइनेंसिंग है वो हम लोग करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो एज है दैट शुड बी 18 to 40। 40 इसलिए क्योंकि 40 के बाद जो है आप यू आर नॉट एबल टू थिंक ब्रॉडली, यू आर नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो उस केसेस में जो एज है 18 to 40, बिकॉज 18 to 40 इज द मोस्ट यंग माइंड, और उसमें बड़े सारे व्यूज होते हैं, बड़े सारे उसमें आइडियाज होते हैं। And as the departments, it mostly rely on the ideas of the people. That's why this scheme is for 18 to 40 years of the
एज। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 10+2, बेसिक आपकी है 12th होनी चाहिए। और जो आपको इंटरेस्ट, वो जो आपको लोन मिलेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। जैसे कि 10+2 वाले को 4 लाख मिलेगा, ग्रेजुएशन को 5 लाख मिलेगा, पीजीज वाले को 6.5 लाख मिलेगा। और जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, डॉक्टर किया है, दे वांट टू ओपन देयर ओन क्लिनिक्स, तो उनके लिए हम आप 10 लाख तक आपको लोन दे सकते हैं। और इसमें क्या है, देयर इज द 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। 35 जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 35% जो है वो है आपको वो देना पड़ेगा सीड मनी। मेरा मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए तो आपको 35,000 अपना डालना पड़ेगा, बाकी जो सारा पैसा है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और इसका मोरेटोरियम पीरियड होगा दैट इज 2 years, मतलब मोरेटोरियम पीरियड इज द डॉर्मेंट पीरियड। 2 साल तक, पहले 2 साल तक कोई आपको पैसे नहीं देने हैं, मतलब जो आपको रीपेमेंट आपकी जो बनेगी मंथली जो ईएमआई, आपको कुछ नहीं देना है। 2 साल तक आप आराम से अपना पैसे लीजिए, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करिए, उसके बाद में आपका रीपेमेंट पीरियड स्टार्ट होगा। बिकॉज 2 years गिवन टू यू फॉर कि अगर आपने अपना कोई भी सेटअप बनाया है, छोटी सी इंडस्ट्री लगाई है या कोई प्लांट लगाया है या कोई क्लिनिक खोला है, तो वो सेट होने में वी नो क्या टाइम लगता है। वी विल नॉट रश इनटू के हमें अभी पैसे रीपेमेंट कर दीजिए। वी विल गिव यू अ पीरियड ऑफ 2 years, और अप टू 2 years जिसने कंटिन्यू करना होता है दे कैन वेल एस्टैब्लिश देयर वेंचर्स। जब उनका वेंचर वेल एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आफ्टर ऑल व्हेन यू आर एबल टू अर्न फ्रॉम दैट वेंचर, तो फिर आपकी रीपेमेंट जो है मनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो रीपेमेंट है वो 75% वो होगा, 75,000 पे ही होगा, और उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। नाउ द सेकंड इज द यूथ स्टार्टअप लोन। यूथ स्टार्टअप लोन में दैट इज स्टार्टअप, यू नो ना, आजकल बड़ा सारा एक वो स्टार्टअप लोन्स एंड स्टार्टअप बनाना है, एप्स बनानी है। आजकल दिस वर्ड इज वेरी मच क्या बोलते हैं उसको, फेमस नाउअडेज, दिस वर्ड इज वेरी मच फेमस। सो इसमें भी आपको 10+2 से अबव आपको मिल जाता है, लेकिन हाँ इसमें जो आपको लोनिंग जो आपका मनी है दैट इज 20 लाख, 20 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। आई थिंक 20 लाख इज अ ह्यूज मनी। इसमें 3-4 लोग मिलकर जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, कुछ नई इंडस्ट्री, कुछ नई ऐप बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आई नो योर एन नंबर ऑफ द आइडियाज इन योर यंग माइंड्स, तो आप कुछ भी करना चाहो तो आपको 20 लाख तक वी कैन फाइनेंस, 20 लाख तक हम दे सकते हैं। इसमें जो मार्जिन मनी होता है 10%। मार्जिन मनी क्या होता है, ये जो 10% है ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जब आप आस्ता आस्ता रीपेमेंट करना स्टार्ट हो, मतलब आप ऐसा एक रफ नटशेल में देख सकते हैं कि 20 लाख का जो 10% होगा उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, दैट इज सॉर्ट ऑफ सब्सिडी लाइक। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 6% है, लेकिन इसमें मोरेटोरियम पीरियड जो है वो 6 months का ही है। 6 months तक आप जो है 6 months के बाद आपकी जो है ईएमआई वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। और रीपेमेंट जो साइकिल है दैट इज नॉट मंथली, दैट इज क्वार्टरली। 3 या 4 क्वार्टर्स में आपको हर साल में 3 या 4 बार आपको वापस करना है लोन। नाउ द थर्ड वन इज द नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और द प्रोजेक्ट हिमायत। इसमें क्या है, ये मोस्टली माइनॉरिटीज के लिए है। एंड द माइनॉरिटी की डेफिनेशन आपको पता है इन आवर स्टेट, दैट इज द SC, ST एंड द सिख्स एंड मुस्लिम्स। ये लोन पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के लिए है, क्योंकि माइनॉरिटीज जो है ये दे आर वेरी लो इन परसेंटेज, इनकी पॉपुलेशन में बड़ी लो रहती है, और सो गिव देम देयर अपर हैंड कि ये तो थोड़ा सा प्रोग्रेस कर पाए। तो इनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिक क्वालिफिकेशन अगर आपको 8 की भी हो वो भी चल जाएगा। जैसे अब 4 लाख कि हमने कुछ लाइफ स्टॉक खरीदना है, कि हमने मिल्क प्रोडक्शन बढ़ानी है, जो लाइफ स्टॉक खरीदना है, हमने शीप्स खरीदनी है, हमें ऊन के लिए चाहिए, जब हमने गोट वगैरह जिसके लिए वो बनती है, जो शॉल वगैरह बनती है उसके लिए चाहिए, व्हाटएवर दे वांट टू बाय, तो उनको हम 4 लाख तक लोन दे सकते हैं। उसमें मार्जिन मनी 5% ही है। उस केस में क्या है, ये सिर्फ नेशनल उसके लिए है, नेशनल माइनॉरिटीज के लिए है, और इसमें भी आपको जो किस्त देगी वो देगी क्वार्टरली।
So these are the three main schemes which are running now in our department, that is the JKEDI. इस डिपार्टमेंट में ये 3 स्कीम्स जो मेन चल रही है और इसमें बड़ी अच्छी हमें अचीवमेंट्स भी मिली हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैं अभी आपको स्लाइड की बता रही हूँ, दैट इज टोटल 24,314 कैंडिडेट्स हमने ट्रेनिंग किया। इसमें केस में क्या होता है कि जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपको 21 डेज की ट्रेनिंग होती है बकायदा कि आपको क्या करना है इस लोन के लिए। अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज में ये डालना है, ये सारी ट्रेन किए जाते हैं, पेपर वर्क कैसे करना है, आपने अकाउंटेंसी कैसे करनी, सब कुछ हम ट्रेनिंग देते हैं। फॉर 21 डेज की वो ट्रेनिंग होते हैं। तो इन तीनों स्कीम्स में हमने अभी तक 24,000 के करीब बच्चे ट्रेन कर दिए हैं। उसमें से 14,000 जो है इनके कोर्स अप्रूव हुए, क्योंकि कई बार जो होता है लोग ट्रेनिंग देके वो थोड़े बोलते हैं नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, व्हाटएवर बी देयर कंस्ट्रेंट जो भी होगा। तो वो 24,000 लोगों को ट्रेन किया और हमने 14,717 के जो केसेस हैं दैट इज अप्रूव्ड। और जो डिसबर्समेंट, जो बैंक की डिसबर्समेंट क्या होता है कि जब आप हमें लोन अप्लाई करते हैं, पहले हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपके जो केसेस होते हैं ये एक हाई लेवल कमेटी से अप्रूव किए जाते हैं। जब वो अप्रूव हो जाएंगे वो केसेस हम बैंक्स को भेज देते हैं और बैंक्स जो है आपके अकाउंट्स में पैसे डाल देती है। सो 14,000 जो केसेस अप्रूव हुए हैं उसमें से वो 11,000 अप्रोक्सीमेटली के बैंक्स में पैसे आ गए हैं। तो सक्सेस रेट जो है सीड कैपिटल फंड स्कीम का 88% है। मतलब कि अगर 100 लोग ने इस स्कीम को अवेल किया तो 88% लोगों दे आर एबल टू एस्टैब्लिश देयर वेंचर्स एंड देयर वो एस्टैब्लिश कर पाए हैं कि उन्होंने जिस चीज के लिए लोन लिया है, व्हाटएवर दैट वुड बी। नेशनल माइनॉरिटी ने 89% है इसका सक्सेस रेट एंड YSLS का जो है यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम का 86% है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस अचीवमेंट्स बिकॉज दिस विल इनकरेज यू कि अगर 88% लोगों ने वो अचीव कर लिया है जो वो चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया, तो यू कुड बी वन ऑफ देम। तो इसलिए मैं अचीवमेंट्स आपको इसलिए बता रही हूँ, सक्सेस रेट इसलिए बता रही हूँ कि आप इनकरेज हों कि अगर आप किसी ये नहीं है, बिकॉज इन आवर माइंडसेट एक चीज रहती है कि हमने लोन ले लिया है तो हमने पता नहीं क्या हो गया है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द सक्सेस रेट। कभी कभी लोन जो होता है इट इज नॉट कि कोई आप पे बोझ ही आ गया है, ये आपको एक नंबर हैंड लेबर ने आपको प्रोग्रेस। नाउ द नेक्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाओगे? यहाँ पे सबसे पहले एक 100 रुपीज का फॉर्म मिलता है, वो आपने भरना है EDI का। पहले तो PRC चाहिए था, तो अब आई थिंक डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल सर्व द पर्पस। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपको ऐसे में आपका लोन का अमाउंट डिफाइन होगा। डेट ऑफ बर्थ, DECC दैट इज द डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन, आपने वो रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं बनाओगे तो आपको जो लोन है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट की कॉपी होनी चाहिए, बिकॉज जो पैसा है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। एक एफिडेविट होता है एज पर योर स्कीम, फोटोग्राफ्स, डिमांड ड्राफ्ट एंड गारंटर। गारंटर समटाइम चाहिए होता है, समटाइम नहीं चाहिए होता, सो दैट्स व्हाई गारंटर एज पर द स्कीम। सो दिस इज वेरी सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद आपकी जब सारी एप्लीकेशन स्क्रूटनी होगी, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी and you will get, whenever your application is approved, you will get your loan within no time. You can start your venture. Now the next one is the Prime Minister Employment Generation Program. ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये 2008 में शुरू हुआ। एज द नेम इटसेल्फ आइडेंटिफाई, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ही बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हों। ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम जो होती है छोटी इंडस्ट्रीज है उनके लिए है। इसमें आपको 25 लाख तक लोन मिलता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जब आपको कुछ चीज बनानी है, एंड 10 लाख फॉर सर्विस यूनिट्स, और आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, जैसे BPOs हो गया, कॉल सेंटर्स हो गया, अगर आपने वो वैसा कुछ बनाना है तो उसके लिए आपको 10 लाख तक मिलता है। और ये जो PMEGP के लोन है ये आपको कौन प्रोवाइड करें? दैट इज KVIC एंड KVIB, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंड खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड इन रूरल एरियाज। और अर्बन एरिया में दैट इज द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। ये जो हमारा DIC है दैट इज इन द हटली मोड,
आप वहां पे जाके भी ये लोन ले सकते हैं अगर आपको छोटे यूनिट्स लगाने हैं, जैसे पानी की बोतल का यूनिट हो गया, सोप मैन्युफैक्चरिंग, बड़े सारे इस टाइम नाउ टाइम देयर अबाउट 440 इंडस्ट्रीज आर रनिंग इन कठुआ। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ये आप 10 या 25 लाख में आराम से स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिर्फ 18 साल से ऊपर की एज का, और इसमें आपको क्या करना है, आपको KVIC ऑनलाइन जो है वहां से आपको ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, और हार्ड कॉपी जो है वो आपको DIC, KVIB और KVI से मिल जाएगी। आपने उस वहां पे ऑनलाइन लिंक में अपनी एप्लीकेशन भरनी है और आपका जो लोन है वो आफ्टर सम टाइम अप्रूव हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जो आपका सब्सिडी एंड दिस कंट्रीब्यूशन क्या है, जर्नल के लिए कंट्रीब्यूशन है 10%। 10% मीन इफ यू आर गेटिंग अ लोन ऑफ 100 रुपीज, आपको 10 रुपए अपने डालने पड़ेंगे और 15 रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। 25 रुपए ये हो गए, और आपको रीपेमेंट जो है वो सिर्फ 75 पे ही करनी है। और अगर सब्सिडी आप रूरल एरिया में भी कुछ खोलना चाह रहे हो तो आपको वो 25% सब्सिडी बढ़ जाएगी, क्योंकि रूरल एरिया में हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि वहां पे ग्रोथ भी हो। इन अर्बन एरिया में अब तो वैसे भी बिकॉज द एरिया इज अर्बन, तो वहां पे तो ऑलमोस्ट ग्रोथ होगी। टू प्रमोट द ग्रोथ इन द रूरल एरियाज, द रेट ऑफ सब्सिडी इज increased in that areas. For the women, SC and ST, OBCs, minority women के लिए स्पेशली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया गया है, 10 से कंट्रीब्यूशन 5% कर दिया गया है, और सब्सिडी जो है वो 25% है। इफ अ फीमेल वांट टू ओपन हर ओन वेंचर, पार्लर या कुछ whatever she boutique, whatever she want to do, not only in the parlor and boutique, whatever industry she want or whatever venture she want to establish, उसको 100 रुपए में से सिर्फ 5 रुपए अपने डालने हैं और 25 रुपए उसको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाएगी, एंड 70 रुपए जो है उसको रीपे करने पड़ेंगे। तो दिस इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीमेन आल्सो। अब I just want to tell you कि what is subsidy. Being college goers, आपको पता नहीं होगा कि सब्सिडी होती क्या है। Actually सब्सिडी इज जस्ट अ टाइप ऑफ कि आपको ये माफ होगी चीज, आपको जो है ये चीज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इतने पैसे गवर्नमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वीमेन जो है वो 10 लाख का लोन ले रही है, तो उसको जो है 10 लाख का लोन लिया तो उसको 50,000 जो है उसको सब्सिडी मिलेगी, और उसका अपना कंट्रीब्यूशन वही 50,000 रहा। मतलब उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो सिर्फ 6 लाख बनी, क्योंकि 4 लाख तो उसको 50,000 उसने अपना डाला और 3.5 लाख तो उसको गवर्नमेंट ने वैसे ही दे दिया फ्री में कि चलो जी तुम कर लो ये काम। तो जस्ट इन द लेमन लैंग्वेज आपको सिर्फ 6 लाख जो है 10 लाख में से प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपकी 10 लाख थी, आपको सिर्फ 6 लाख तक रीपेमेंट करना पड़ेगा, बाकी जो है दैट इज जस्ट द गवर्नमेंट एड। अब प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोई भी हो जाएगी, TDI हो जाएगी, KVIC हो जाएगी, जहाँ इंडस्ट्रियल बोर्ड हो जाएगा। फिर हमारी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है और इसमें DC सर चेयरमैन होते हैं, और जो भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होता है वो मेंबर्स होते हैं। वो आपके केस को स्क्रूटिनी करते हैं पूरा। जब आपका केस पूरा ओके हो जाता है कि हाँ ये इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, एक पर्सनल इंटरव्यू भी कर देते हैं हम कभी कभी किसी स्टूडेंट का कि अभी कुछ खोलना था, हम उसका व्यू पॉइंट तो देखें कि वो क्या चाह रहा है। तो आफ्टर इंटरव्यू जब आपका केस ओके हो जाएगा तो फिर वो बैंक को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बैंक विल चेक द फिजिबिलिटी की उस जगह पे ये प्रोजेक्ट लग पाएगा, वहां पे ये इतना ग्रोथ दे पाएगा जितनी आपने अपनी DPR जहाँ उसमें मेंशन की है, ये सारी चीजें बैंक देखेगा और फिर आपको वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके बाद आपका जो लोन है वो आपको दे दिया जाएगा। अब ये सारा चीजें थी कि आप कैसा जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं। Now the topic is closed. If you want to ask any question regarding this employment scenario, तो आप प्लीज यू आर ओपन टू एनी क्वेश्चन। अगर आपको ऑफिस में कभी आना पड़े, वेलकम टू अवर ऑफिस एनी टाइम। सो एनी क्वेश्चंस? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। मैं साहब डॉक्टर बलविंदर सिंह। मैडम यस सर। मेरा लोन से संबंधित एक प्रश्न है। हाँ जी। OBC बैंक से
मेरे ब्रदर ने लोन लिया था पोल्ट्री के लिए, जो शिप एंड हस्बेंड्री ने अलाउ किया था। इसके लिए शिप एंड इसके लिए लोन हस्बेंड्री लिया था, पोल्ट्री के लिए। एनिमल हस्बेंड्री, हाँ हाँ पोल्ट्री के लिए। हाँ हाँ। हाँ जी। और बाय चांस उनकी ट्रेजरी हो गई, उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई है। अच्छा वो अभी तक ना तो हमें सब्सिडी दे रहे हैं। हेलो। अच्छा। ना सब्सिडी, ना सब तो सब्सिडी बैंक का एंडेड वो इशू सब्सिडी उठा रहे होगी। हैं कि नबार्ड ने देनी है, इसलिए हम सब्सिडी नहीं आपको दे सकते, नबार्ड ने पोर्टल क्रिएट नहीं किया है। एक्चुअली नबार्ड जो है ना, हाँ नबार्ड इज अ बैंक जो एग्रीकल्चर एलाइड के लिए आपको लोनिंग देता है। आई थिंक दैट जो उनकी सब्सिडी का वो इशू रहा होगा, उनकी पक्का वो बैक एंडेड सब्सिडी होती है। एक्चुअली जो बैक एंडेड सब्सिडी होती है उसमें क्या होता है, आफ्टर रीपेमेंट, अगर आपने 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल लोन लिया है, तो अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया है, तो उस केस में क्या है कि जब आप पूरा लोन रीपे कर दोगे उसके बाद वो सब्सिडी रिलीज करते हैं। मैडम, एक ये बैक मैं एंड। बैंक में गया था, मैं रीपेमेंट हाँ, लेट मी फिनिश। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नबार्ड होता है, आपने उनसे बात की? नबार्ड वालों से बात नहीं डिस्ट्रिक्ट की हमने। मैनेजर नबार्ड, नहीं नहीं। आप प्लीज उनसे टेक अप कीजिए ये मैटर, क्योंकि ये बैंक वाले नहीं आपको करेंगे, क्या पता उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो मेंशन है वो आपको ज्यादा क्लियर बता पाएंगे। नबार्ड का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, प्लीज आप उनसे बात कीजिए, थैंक यू। रादर देन कि आप बैंक्स में चक्कर लगाएं, बिकॉज बैंक्स दे आर वेरी एडमेंट अबाउट दिस इश्यूज ना, लोन रीपेमेंट के लिए। तो जो नबार्ड के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे, दे विल श्योरली लीड योर वे कि आपको कैसे जाना है। थैंक यू मैडम। ओके सर। Thank you, ma'am, for such a wonderful talk. I am delighted Thank to hear from you on such a wonderful topic. I hope that our students will definitely benefit from the various schemes. Now I request my students, if they have any question, they can ask by unmuting themselves, or they can use the chat section. Dear students, if you have any question, you can ask. Good afternoon. Good afternoon. This side Imran. Yes. Hello. Yes, बच्चे पूछिए. सर मेरे इस क्वेश्चन है कि जो लोन हम ले रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी कोई हमें कोई भी हमें बिजनेस एस्टैब्लिश करना हो, उसके लिए जो हम लोन ले रहे हैं, हम ईडीआई से ले रहे हैं या बैंक से ले रहे हैं, या पार्टली हम ईडीआई से, ईडीआई हमें प्रोवाइड कर रहा है या बैंक कर रहा है? जो बैंक होता है दैट इज द फाइनेंसिंग एजेंसी। जो स्कीम होती है वो गवर्नमेंट की होती है, जो स्कीम ने गाइडलाइन ऑलरेडी बैंक को दी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। बिकॉज जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो फाइनेंसिंग एजेंसी नहीं है। किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पे फाइनेंसिंग एजेंसी जो है दैट इज ओनली द बैंक। सो गवर्नमेंट हैज लेड द गाइडलाइंस टू द बैंक, वो बता देते हैं कि इस स्कीम में आपको ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है। बिकॉज फाइनेंशियल मैटर इट इज बेटर कि वो फाइनेंसिंग एजेंसीज ही टेक अप करे रादर देन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ईडीआई आपके तरीके से कोई लोन वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रही अपने बेस पे? जो ये ईडीआई एक्चुअली आप ऐसे समझ लीजिए ना कि कोई पैसा है वो हमने किसी को दे रखा है, हम उसको बोल देंगे ये पैसा इसको दे दो। बैंक जो है हमारे से फाइनेंसिंग एजेंसीज रहते हैं, हमने उनको बताना है कि ये पैसा आपने उनको देना है। बैंक हमारे उस पे काम करेंगे, हमारे ऑर्डर्स पे काम करेंगे, हम खुद अपने पास पैसे नहीं रखेंगे। हाँ जी मैम, फिर इसका मतलब है हमें तो ईडीआई से कोई लेन देन है ही नहीं, फिर तो सीधा हम बैंक से डील करते हैं। ईडीआई से फिर कहाँ से लेन देन हमारा होगा? मेरी बात सुनिए, आप यू कांट गो टू द बैंक डायरेक्टली कि हमें इस चीज में लोन चाहिए। सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट रिलीज करेगी ना। अगर आप गवर्नमेंट के पास नहीं आओगे तो आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी? हम कैसे बोलेंगे कि इसके इतने परसेंटेज को माफ कर दो? वो चीजें कैसे होंगी? वही आप तो बैंक के वही पास मेरा क्वेश्चन है ना कि जो, हाँ जी मैम ये मेरा क्वेश्चन है कि सब्सिडी जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, सब्सिडी मान के चलो मैंने 100 रुपए का लोन ले रखा है, ठीक है मैम, उसने मुझे 50-30 रुपए का जो बैंक आपको सब्सिडी देगा वो ऑन द डायरेक्शंस ऑफ आवर इंस्टीट्यूट देगा। अगर हम उसको डायरेक्शन देंगे कि नहीं देना तो वो नहीं देगा। सो हियर कम्स आवर रोल ना, वी आर डायरेक्टिंग बैंक।
वी आर डायरेक्टिंग बैंक टू गिव यू मनी, टू गिव यू सब्सिडी. इफ वी डोंट डायरेक्ट तो आपको कहाँ से मिलेगा? वो तो फिर बैंक के लोनिंग होगी ना, जैसे आप पीसीएल लेते हो या कार लोन लेते हो, वो बैंक के लोन होगे, उसमें बैंक्स की डायरेक्शन होती है. लेकिन इन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनमें जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होती है. हाँ जी मैम, वन ऑफ माय फ्रेंड अप्रोच, मैम एक फ्रेंड है मेरा, उन्हें अप्रोच किया था ईडीआई पे, ठीक है. तो उन्होंने उनसे कहा कि हम 2 तरह के लोन आपको प्रोवाइड करवाएंगे. एक जो आपको डायरेक्टली बैंक से रिलेटेड होगा, ठीक है, एक जो डायरेक्टली बैंक से रिलेटेड होगा, उसमें जो आपको सब्सिडी मिलेगी, उस पर जो इंटरेस्ट है आपको कम मिलेगा, इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है. दूसरा जो ईडीआई पर्सनली अपने तरीके से दे रही है, उस पर इंटरेस्ट अराउंड 18% समथिंग वो कह रहे थे. अच्छा, तो यही मुझे क्लियर करना था कि मतलब ईडीआई अपने तरीके से कोई लोन दे रहा है, उस पर कोई they have given you the alternatives. आपको जिसमें लगता है कि आपका फायदा है, go for that. वही मैं कह रहा हूँ ना, यही मेरा क्वेश्चन था, ईडीआई अपने तरीके से प्रोवाइड कुछ करता है कि नहीं करता है? देखो जो स्कीम है कि उनके है, आप हाँ, हमने यू आर बेनिफिशियरी, हम आपको 2 चीजें बता रहे हैं, आपको जिसमें आपको बेनिफिट लगता है, गो फॉर दैट. डोंट गो इनटू कि बैंक दे रहा है, ईडीआई दे रही है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, जो है वैसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू मैम. अगर इस केस में भी फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होते हैं ईडीआई के, आप उनसे पूछ लीजिए. ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके, आई थिंक यू गॉट योर पॉइंट. Yes, I got it. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. It's nice meeting you. It's a wonderful session. I would like to come Yes, over ma'am. again and again. It was a really wonderful session. I truly enjoyed it. Yeah. Hopefully, our students Yeah, thank you. has also enjoyed the same. Actually, sir, I also always feel connected with GDC Kathua. Yes. Thank you, ma'am. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. I would like to welcome Dr. Jagjit Singh, Nodal and Placement Officer of Jammu Division. Dr. Jagjit Singh जी, आप कॉल पे हैं यहाँ पे? आप डॉक्टर जगजीत सिंह शायद वो लीव कर गया अभी. Hopefully they will join again. Now I would like to invite Shri Surjit Kumar for second lecture. Welcome Shri Surjit Kumar ji. Thank you, sir. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Kindly present your screen. Hello. Yes. Screen is visible. Thank you, sir. Respected Principal GDC Kathua, Asharam sir ji, Rakesh ji. Today's my topic is on National Career Services Portal. तो जैसा कि मैम ने आपको मेरे से पहले जो सेशन हुआ उसमें बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या सेक्टर रहते हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ किस तरीके से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं विद द डिस्ट्रिक्ट, और जो पास बच्चे हैं अगर इनफैक्ट उनको जॉब नहीं मिल पाए तो किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली बोर्ड है और एसबीसी कॉर्पोरेशन करके है. तो इसी काफी सारे और भी स्कीम्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर के पास जिनका डाटा रहता है. तो कोई भी बच्चा जो आफ्टर 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जिसको जॉब नहीं मिल पाती है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकता है. तो टुडे जो माय टॉपिक इज है ये है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल जॉब सीकर मॉड्यूल. ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जिसमें इस पोर्टल का जो मेन मकसद है कि यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर दोनों जो जॉब सीकर होते हैं और जॉब प्रोवाइडर होते हैं, दोनों की इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होती है, दोनों का यहाँ पे मीट होता है. और जो जॉब सीकर होते हैं उनको यहाँ इस पोर्टल से जॉब मिलती है, और जो जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं उनको जिस तरीके का उनको सर्विस वाला कैंडिडेट चाहिए वो वहां से उनको मिल जाता है. तो सबसे
पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी इन 2015 में ये लॉन्च हुआ है पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और ये जो एक पोर्टल है मात्र एक ऐसा पोर्टल है वो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट कर रही है, वन स्टॉप शॉप कैरियर पोर्टल। और यहाँ पे जितने भी थ्रू आउट इंडिया जितने भी जॉब्स वगैरह निकलती हैं, जितने भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सारी जॉब्स यहाँ पे मिल जाती, सभी की यहाँ पे आपको ऐड मिल जाएगी। आपको किस तरीके से उसमें जाना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहती है, किस तरीके से आपको उसमें क्या सिलेबस आएगा, वो सारा का सारा इस पोर्टल में आप वहां से आपको मिल सकता है। और ये जो हमारा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है ये ऑपरेटर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा पैन इंडिया प्रेजेंस। और आज अब जो हमारे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उन्हीं को इन्होंने मॉडर्न करा हुआ है, एमसीसी जिसका है मॉडल कैरियर सेंटर्स है। और इसमें हर तरीके से आप जितने भी हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारे जो पास आउट होते हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं, वो यहाँ पे रजिस्टर करते हैं और एज पर देयर डिजायर उनको कहाँ पे जॉब निकली हुई है थ्रू आउट इंडिया, कहाँ पे जॉब फेयर लग रहा है, उसके बारे में सारा का सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। और ये जो पोर्टल आईसीटी पोर्टल है इसमें पूरा का पूरा आप डिजिटल थ्रू जो भी होगा आपको घर बैठे जितनी भी है इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करी जाती है। इस पोर्टल का हमें कोई भी, अगर हम देखेंगे यूनिक्स क्या है, फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी हमें मतलब इसमें चार्ज नहीं रहता है। जैसे हम प्राइवेट कंसल्टेंसीज में जाके अपना रिज्यूमे देते हैं, फिर उनको फीस वगैरह देते हैं और फीस देने के बाद हमें जॉब्स के बारे में पता चलता है कि कहाँ पे कौन से सेक्टर में क्या जॉब निकल रही है। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा हमारा पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ पे फ्री ऑफ चार्जेस आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। यू हैव जस्ट सिंपल वहाँ पे आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको जितनी भी सारी जॉब्स होंगी वो सारी की वन बाय वन करके जो आपके रिज्यूमे के साथ, आपके क्वालिफिकेशन के साथ, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप मैच करेंगी, वो सारी की सारी आपको थ्रू टेलीफोन में, थ्रू ईमेल या मैसेज के द्वारा आपको फोन के ऊपर भी मिल सकती है। प्रोवाइड गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। और ये ऐसा एक पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में पूरा नॉलेज मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे जॉब निकल रही है उसके बारे में भी सारी की सारी जॉब मिल रही है, लोकेटेड अक्रॉस द इंडिया। और अक्रॉस इंडिया जरूरी नहीं है कि जो बच्चा हमारे जम्मू कश्मीर का है, जो उसको जम्मू कश्मीर के लिए अप्लाई करना, वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, वो पंजाब में जाना चाहता है, हिमाचल में जाना चाहता है, मेट्रो सिटीज में बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पे भी वो जाना चाहता है, यहाँ पे भी उसको जॉब्स आएगी। जहाँ पे भी उसके कैरियर के हिसाब से उसको जो कंपनी में जिसके उसमें जो कोर्सेज करे हुए हैं, जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको अक्रॉस इंडिया से उसको जॉब्स के लिए मिल जाएगा, जो जितना भी जॉब्स का डाटा अवेलेबल होगा। ऑफरिंग वेरियस कैरियर सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला। और ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जिसमें एक ही विंडो के नीचे आपको हर जगह के प्राइवेट सेक्टर की जॉब के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूजफुल फॉर जॉब सीकर, एम्प्लॉयर, काउंसलर, स्किल प्रोवाइडर, लोकल सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा। और इसमें जितने भी, जरूरी नहीं है कि इसमें जैसे हमारे कठुआ में लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर उनको जॉब्स के लिए बच्चे चाहिए होंगे तो उन्होंने भी एज एन सिंपल यहाँ पे आके जॉब प्रोवाइडर और जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर करके इसमें कॉलम रहता है, उसमें उन्होंने अपना स्किल्स डाला होता है कि हमें इस स्किल का प्लम्बर चाहिए, हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हमें कंप्यूटर का कोई स्किल चाहिए, तो वो उसमें भी रजिस्टर करते हैं और वहाँ पे भी आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पे भी आपको जॉब अच्छे से मिल सकती है। अगर जैसा कि अगर आप इसकी जो वेबसाइट है एनसीएस पोर्टल की www.nic.go.in पे आप जाएंगे तो आपको वहां पे ऐसा इस तरीके से एक पूरा का पूरा मिल जाएगा, पोर्टल मिल जाएगा। ये जो पोर्टल की वो है पिक्चर दिख रही है आपको स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले होम आएगा, जॉब सीकर में अगर आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, कैरियर सेंटर्स हैं, कैरियर सेंटर्स को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खुद ऑपरेट कर रहे हैं। आपको किस तरीके की काउंसलिंग चाहिए, कौन से काउंसलर आपको चाहिए, आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जाना है या किसके लिए जाना है, वो आपको किस फील्ड में, आपको फार्मा फील्ड में चाहिए, आईटी फील्ड में काउंसलर चाहिए, इस पोर्टल में जाके आप उस काउंसलर से अपना मीट कर सकते हैं और उससे उस तरीके की अपने कैरियर के रिगार्डिंग आप वहां से काउंसलिंग ले सकते हैं।
स्किल प्रोवाइडर, आपको किस तरीके का स्किल चाहिए उसके बारे में आपको पूरी की पूरी इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी थ्रू आउट इंडिया। जितने स्किल प्रोवाइडर जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पे आपको स्किल के लिए आप वहाँ पे जाके अपना नाम अगर रजिस्टर करेंगे तो यहाँ से आप इस एक कॉमन पोर्टल से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में कितनी सारी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, कहाँ पे जैसे टाटा कंसल्टेंसीज हैं या फिर कोई कुछ और जैसे चंडीगढ़ वगैरह में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जो प्राइवेट प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, तो आप वहाँ पे अगर ये इस कॉमन पोर्टल पे सारे के सारे रजिस्टर हैं और यहाँ से आपको पूरी की पूरी उनके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो जॉब्स वगैरह हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में निकल रही है, चाहे वो यूपीएससी में निकल रही हूँ, एसएससी में निकल रही हूँ, अगर हमारे स्टेट का कहें तो जेकेपीएससी हो या फिर अपना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, तो उसमें सारा का सारा सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन सी कब जॉब्स निकल रही है वो भी सारी की सारी आपको एक सिंगल इस पोर्टल से मिल सकती है। रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ये बैकएंड का थोड़ा रहता है इसमें, जो रिपोर्ट जो बच्चे यहाँ पे रजिस्टर होते हैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह ये गवर्नमेंट के कैरियर सेंटर्स को यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग एट NICS और जितनी सारी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स शॉर्ट टर्म्स सर्टिफिकेशन जो होती हैं उसके बारे में भी आपको सारा का सारा यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इसके नीचे ही आपको मतलब पूरा ये सारा का सारा दिख रहा है कि कितनी जैसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम में हो गया, कितनी वैकेंसी निकल रही हैं, सारी की सारी इस एकमात्र पोर्टल से आपको घर में बैठे, मतलब आपको कहीं भी जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ सिंपल इसमें एनसीएस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करना है और इस पोर्टल में रजिस्टर करने के बाद आपको घर में बैठे सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाएगी कि कौन सी सेक्टर में कौन सी स्टेट में कितनी जॉब निकल रही है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो इसमें आपको सिंपल करना कुछ नहीं, आपको जाके अपना नाम रजिस्टर करना है, जैसे न्यू यूजर रजिस्टर पे जाके आपको वहां पे रजिस्टर करना है अपने आप को। जैसे हम लोग करियर सेंटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑलरेडी मिला होता है, लेकिन अगर कोई नया बंदा यूज करना चाहे तो वो सिंपली इसको एनसीएस न्यू यूजर पे जाके उसमें अपने आप को नाम रजिस्टर कर सकता है और जो उसकी क्वालिफिकेशन होगी वो सारा का सारे आगे पूरा का पूरा एक फॉर्मेट आपको मिलेगा जो आपको भरना है सारा का सारा। और इसके ऊपर और बहुत सारे जैसे मैं आपको बता रहा था कि कितने हमारे सारा का सारा इसमें एम्प्लॉयर्स का डाटा रहता है कि कितने एक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कैरियर्स इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, फाइंड जॉब, आपको जॉब ढूंढनी है, जॉब्स फॉर वुमेन, वुमेन के लिए एक अलग से पूरा का पूरा इसमें रहता है कि वुमेन्स कहाँ कहाँ पे जा सकती है, एविएशन में जा सकती है या कहीं पे भी जो नए ट्रेंड चल रहा है इस टाइम, उसके हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा जब आप एक बार इसमें रजिस्टर कर जाओगे तो उसके बाद एज पर योर जो आपने इसमें डाटा फिल करोगे उसी के हिसाब से आपको जॉब्स की मेल्स आना शुरू हो जाएंगी और आप विद इन डेज, मुझे लगता है अगर इस पोर्टल को यूज करें तो विद इन डेज आपको एक अच्छी प्राइवेट जहाँ गवर्नमेंट जो सर्विस है वो मिल सकती है। इसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स प्लस एम्प्लॉयमेंट जितनी भी है प्राइवेट वो सारी की सारी इसमें मिल सकती है आपको, इसमें सारी की सारी इसमें इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, ये सारा का इस पोर्टल बहुत ही इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीएस पोर्टल, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एनसीएस पोर्टल को लॉन्च करने का वो था कैरियर रिलेटेड सर्विसेज, कि बच्चों को किस तरीके से मतलब अपना कैरियर सेट करना है, उनको किस इंडस्ट्रीज में जाना, उनका क्या इंटरेस्ट है, सारा का सारा कैरियर की रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी मतलब आपको जानकारी चाहते हो तो आपको सिंपल इस अपने पोर्टल पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप जब इसको 2-3 बार इस पोर्टल को रजिस्टर करने के बाद आप चलाओगे, आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन अपने आप खुद ब खुद पता चल जाएगी कि किस तरीके से हमने कैरियर को अपनी कैरियर की तरफ जाना है। एक्टिंग एज ए ब्रिज इन मेकिंग इफेक्टिव कैरियर, और यही इसका जो हमारा इस गवर्नमेंट का एक पोर्टल बनाने का यही एक मकसद था, एक ब्रिज था कि इस तरीके से जो जॉब सीकर हैं और जॉब प्रोवाइडर हैं उनको आमने सामने रखा जाए और उसको आमने सामने एक लिंक बनाया गया और दैट लिंक विल बी द एनसीएस पोर्टल। इस पोर्टल के थ्रू वो आमने सामने आएंगे, अपना जो जिसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी या जिसकी जो जॉब के स्किल्स मैच करेंगे वो उसी के हिसाब से आगे अपना रेज्यूमे पर देंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और उसी के हिसाब से आगे ये एक ब्रिज का काम करेगा, ताकि जो हमारे नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं, जहाँ जो लेफ्ट आउट है, जिनको नौकरी नहीं मिली है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और जहाँ
किसी तरीके से जो नॉलेज नहीं था, तो उनके लिए यहाँ पे रजिस्टर करना और वहाँ पे ये उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है एनसीएस पोर्टल की। वो डिटेल्स में जाके आप किस तरीके से मतलब जॉब दे सकते हैं। लिंक यूथ जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर अदर्स, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूथ को, जॉब सीकर को और एम्प्लॉयर को यहाँ पे लिंक कर रहा है। पैन इंडिया रीच है इसकी थ्रू आउट इंडिया, आईसीआईसी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एज मॉडल करियर सेंटर। और ये पूरा आज जो हमारे आईसीआईसी बेस्ड पूरा मॉडल करियर सेंटर्स बने हुए हैं अक्रॉस द इंडिया। आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके वहां पे जाके भी ये इस तरीके की आप रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकते हैं, एम्पावरिंग द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और इसका जो मेन एक एनसीएस पोर्टल का ये भी मकसद था कि जो हमारे करंटली जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे, जैसे अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट में पहले पीछे हिस्ट्री में चले जाएं तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते हैं आज से 20 साल 10 साल पहले, नाउ द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, these are converted into distinct employment and counseling centers। employment में बच्चों को employment प्लस काउंसलिंग करी जाएगी, बच्चों को बताया जाएगा कि किस तरीके से अगर उन्होंने कोई एग्जाम तैयार करना है, किस तरीके से उन्हें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, किस तरीके से उन्होंने अपना एनटीए का एग्जाम देना है, सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करना है, यूपीएससी में आईएएस का जो एग्जाम्स होते हैं, कितने सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्स आर देयर हु विल बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी, जेकेबीएस एंड एसएसआरबी। वो सारी की सारी अब उन पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है, सारी की सारी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है वो उनकी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं किस तरीके से आपने ये जॉब ली है। सर्विस ऑफर टू द स्टेक होल्डर, और ये जो हमारा एनसीएस पोर्टल है वो किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या इसकी सर्विस है, जॉब रिलेटेड जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी, जॉब्स के रिगार्डिंग, जॉब सीकर जो हमारे नौकरी तलाश करने वाले हैं, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए जितनी भी थ्रू आउट इंडिया अब्रॉड जितनी भी जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इस पोर्टल पे अवेलेबल है। जॉब पोस्टिंग और एम्प्लॉयर के लिए जो जॉब पोस्टिंग करने हैं वो इस पोर्टल पे आके जॉब पोस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जॉब मैचिंग, इस पे ऑनलाइन ही जॉब मैचिंग होगी आपके प्रोफाइल के साथ, और आपको ऑटोमेटिक जनरेटेड मेल चली जाएगी आपकी आईडी में, तो उससे उसके हिसाब से आपका कंपनी के साथ टाई अप हो जाएगा और कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाएगा, और एक एम्प्लॉयज को जहाँ जो जॉब सीकर होगा उसको जॉब मिल जाएगी। करियर काउंसलिंग, इसमें बहुत सारा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्लाइड में बताया काउंसलर वाला, इस वन काउंसलर, तो इसमें आपको अच्छे जैसा भी आप लोगों को बच्चों को काउंसलर चाहिए होगा, आजकल हम मेट्रो सिटीज में चले जाएं तो काफी सारे पेरेंट्स हैं वो चले जाते हैं काउंसलर्स के पास चले जाते हैं, भी हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड जा रहा है, तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट हमारा मेडिकल लाइन में है भी है कि नहीं, तो दिस काउंसलर विल कंडक्ट द साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड दे विल चेक द वेयर द इंटरेस्ट हैज बीन, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी जो काउंसलर होते हैं वो पूरा का पूरा गाइड करते हैं। तो आप ऑनलाइन इनके साथ मीट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का काउंसलर चाहिए, और वो पूरी की पूरी आपकी जो क्वेरीज होंगी वो पूरी की पूरी क्वेरीज को आपको सॉल्व करेगा। नेक्स्ट वन इज द जॉब फेयर एंड द रिक्रूटमेंट ड्राइव्स थ्रू आउट इंडिया। जितने भी जॉब फेयर्स होते हैं, चाहे वो असम में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, वो सारी की सारी इस पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगी। प्लान जगह के ऊपर उसका जो डेट है, उसका जो वेन्यू है, वो पूरी की पूरी जॉब फेयर की पूरी अलॉन्ग विद कौन कौन सी वहां पे कंपनीज आ रही हैं, एचआर में आ रही है, फाइनेंस में आ रही है, आईटीसी में आ रही है, जितनी सारी कंपनीज हैं इस सेक्टर में वो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारा का सारा इसके ऊपर एक स्क्रॉल डाउन चलता रहता है। जैसे ही आप अपना नेट पे गूगल पे जाओगे, एनसीएस को सर्च करोगे, तो सबसे पहले वही आएगा कि स्क्रॉल करेगा कि इतनी तारीख को इतनी यहाँ पे एक हमारा जो चल रहा है जॉब फेयर चल रहा है, जहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यहीं से ही। ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोवाइडर, और इसमें अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज चाहिए हो या कोई स्किल प्रोवाइडर को जो चाहिए हो स्टूडेंट, तो वो भी इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी काफी इंफॉर्मेशन रहती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द अदर इंफॉर्मेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है, जैसे हमारी पीएमजीपी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, या फिर एसटीबीसी कॉर्पोरेशन द्वारा जितनी इंफॉर्मेशन होगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गवर्नमेंट रन कर रही है, स्कीम्स रन कर रही है, वो स्कीम्स के बारे में भी अगर आपको इंफॉर्मेशन इस पोर्टल से आप ले सकते हो। लोकल सर्विसेज, एलएसपी लोकल सर्विस प्रोवाइडर, जैसे हमारे लोकल सर्विसेज सीटीएम हो गया, हम कठुआ में भी अब इसमें कुछ काफी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एंटर कर रहे हैं,
वो अपनी जॉब्स डाल रहे हैं, सीटीएम डाल रही है, जैक्सन कंपनी है यहाँ पे कठुआ में, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, अब उनको उनके थ्रू भी उनको भी हम उनसे भी हम रास्ता चल रहा है, ताकि वो जो लोकल जितनी भी हमारी सर्विसेज निकल रही है, ये जो हमारे ग्रीन जम्मू में अपना इंडस्ट्री एरिया है, सांबा में है, कठुआ में है, वो सारे के सारे यहाँ पे जॉब्स डाल, यहाँ से लोगों को यहाँ पे रिक्रूट करना उन्होंने भी शुरू कर दिया हुआ है। और इसमें सर्विसेज फॉर द जॉब सीकर के लिए इसमें जो सर्विसेज हैं, जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन होती है, इसमें काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग मिल रही है, ऑफलाइन काउंसलिंग का भी इसमें प्रावधान है, जॉब एंड कैरियर इंफॉर्मेशन, जॉब्स और कैरियर के रिगार्डिंग जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इस पोर्टल के ऊपर आपको पूरी यहाँ पे मिल जाएगी। आपको आपने किस तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, हमारे टाटा TSCS जो टाटा कंसल्टेंसीज हैं, वीडियो रिज्यूम बनाते हो आप, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, डिजी लॉकर्स है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, सारी की सारी जितनी भी मतलब रिगार्डिंग करियर के रिगार्डिंग जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो सारी की सारी इस आपको इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। तो अब जो हमारा मेन था कि इस पोर्टल पे आपको किस तरीके से आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करनी है। जॉब सीकर की जो रजिस्ट्रेशन होती है, ये इसका स्नैपशॉट है कि आपको जब आप खोलोगे इसमें न्यू यूजर करके, तो इस तरीके से आपको पहले ही पूरा का पूरा आपके सामने पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप लोगों ने स्टार जो दिखा रहा है नीचे कि आपको रजिस्टर करना है एज एन जॉब सीकर करना है या जॉब प्रोवाइडर करना है, किस तरीके से कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप जॉब प्रोवाइडर हो, तो आपने कुछ कॉलम में चले जाना है। जैसे सेकंड वन इज ये ऐसा आपको पोर्टल मिल जाएगा। वहां पे जब आप बोलोगे कि आपको जॉब सीकर में जाना है, एम्प्लॉयर में जाना है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर में जाना है, हाउस होल्ड यूजर में जाना है, रजिस्टर करना है, स्किल प्रोवाइडर में रजिस्टर करना है, काउंसलर में रजिस्टर करना है, सपोज है कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो प्राइवेट एक्सपर्ट्स हैं, जो लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, लोगों के बच्चों के साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, तो वो एज एन काउंसलर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। बाद में काउंसलर के पास ऑटोमेटिक जो कॉल जनरेट होगी उसका फोन नंबर आपके मेल आईडी में आ जाएगा और आप लोग वहां पे उस काउंसलर से मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कॉमन ऐसा पोर्टल है, यहाँ पे हर किसी को जॉब मिल रही है, चाहे वो जॉब सीकर हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, जहाँ हर किसी की यहाँ पे जो हेल्प हो रही है कॉमन एक सिंगल पोर्टल की साइड से। प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी हमारी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आप एज एन वो यूज रजिस्टर कर सकते हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इसमें रजिस्ट्री कर सकते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। आपको जिस भी तरीके से रजिस्टर करना होगा आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको का पूरा ये रजिस्ट्रेशन का वो पूरा आपका डाटा मांगेगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, हायर क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा का सारा। और इसमें बाद में आपको एक आपके फोन के ऊपर सिंगल OTP मिलेगा और उसके बाद आपको OTP मिलेगा और OTP आने के बाद पूरा का पूरा उसमें आपकी जो आईडी होगी वो जनरेट हो जाएगी और उसमें आप फिर जब एक बार रजिस्टर कर जाओगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उसमें जॉब सर्च कर पाओगे, इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो, अप्लाई फॉर ट्रेनिंग्स के लिए, काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हो, पार्टिसिपेशन इन जॉब फेयर आपने किस तरीके से करनी है, जो जॉब है वहाँ पे आपने पार्टिसिपेशन करनी है, आप उसमें जॉब्स में जाके क्लिक करके तो वहाँ पे आप ऑनलाइन उनके साथ बुकिंग कर सकते हो कि मैंने ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। वो सारा उसमें जब एक बार आप रजिस्टर कर जाओगे तो पूरी की पूरी आपको पूरा का पूरा उसमें आपको इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी थ्रू टेलीफोनिकली, मैसेज के थ्रू, या जो आपने ईमेल डाली होगी वो पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आना शुरू हो जाएगी और आप इस पोर्टल के साथ आपका एक लिंक बन जाएगा, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि ब्रिज बन जाएगा और पोर्टल और आपके बीच में थ्रू इस रजिस्ट्रेशन के। तो वो सारा का सारा एक सीक्वेंस में प्रोसेस चलता है।
जितने भी अदर इवेंट्स हो गए, एटीट्यूड टेस्ट करवाते हो, रिज्यूम फॉर्मेट या वीडियो रिज्यूम, इसमें ये भी आप बच्चों की हेल्प करता है कि किस तरीके से आप लोग बच्चों ने एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है, या किस तरीके से आपको एक कंपनी को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, उसमें क्या क्या आपके स्किल्स हैं, किस तरीके से अपने स्किल्स को आपने हाईलाइट करना है अपने रिज्यूम में, सारी की सारी स्किल्स के बारे में भी जो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आफ्टर लॉग इन करने के बाद जैसा ही आप जितनी भी उसमें रिकमेंडेशन जॉब सर्च करनी है, जो भी आप जिस चीज के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए होगी, वो सारी की सारी आपके फोन पे इजीली अवेलेबल होगी। और साथ ही साथ में जब आप इसको ऑपरेट करोगे, इसको पोर्टल को चलाओगे, और इस पोर्टल के थ्रू आपको पूरी की पूरी जो भी होगी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जिस जहाँ पे भी आपने जॉब सर्च करना, जैसे ये है जॉब रिकमेंडेशन, अगर आपने अपने बीच में अपना रिज्यूमे डाल दिया, अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, तो ऑटोमेटिकली ये उसी टाइम ये आपकी रिकमेंडेशन आपको देता रहेगा कि ये जो फलानी फलानी जगह पे जॉब्स हैं, आपके रिज्यूमे को मैच करती है, तो आप वहां पे जाके इंटरव्यू कर सकते हो। काउंसलिंग के लिए अगर आप जाते हो तो ये काउंसलिंग में बताएगा कि कितने काउंसलर्स अवेलेबल हैं, इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हैं, कब कब वो अवेलेबल हैं, वो पूरी की पूरी आपको आप स्लॉट उसमें बुक करेंगे कर सकते हो कि इतनी तारीख को इतने टाइम पे मुझे इतने टाइम के लिए मतलब काउंसलिंग लेनी है मुझे। इसमें इनफैक्ट कुछ काउंसलर्स ऐसे भी होते हैं जो पेड काउंसलर्स होते हैं, उनको आपको ऑनलाइन फीस भी कई बार पेमेंट करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ काउंसलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देते हैं, कुछ पेमेंट्स फीस के काउंसलिंग देते हैं। तो वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड होगा इस काउंसलिंग में जाके आपको सेल में मतलब पूरा एक पोर्टल में खुलेगा, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने उस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी कि आपको किस तरीके की काउंसलिंग चाहिए। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एक सिंगल काउंसलर मिलेगा, आपको बहुत सारे एक ही एक्सपर्ट, अगर आप आईटी में जाना चाहते हो, अगर आप फार्मा में जाना चाहते हो तो फार्मा वाले बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स आपको मिलेंगे, और उसके आगे रेटिंग होगी 3 स्टार 4 स्टार, जैसे हम मैं अपने एप्स को रेटिंग करते हैं उसी के हिसाब से इनका काउंसलर्स का जो आगे रेटिंग करी होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं कि इन्होंने कितनी विजिटें की हुई है, कितने लोगों को काउंसल करा होगा, वो अपने आप अपने हिसाब से उस काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हो। क्रिएटिंग वीडियो प्रोफाइल, आपने किस तरीके से वीडियो प्रोफाइल बनाने हैं, इसके जैसे मैंने आपको बताया उसके बारे में ये आपकी हेल्प करेगा। आपने किस तरीके से अपने प्रोफाइल्स बनाने हैं ताकि सो दैट कंपनीज विल आपको कंपनीज का आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हों। जैसे हमारा टाटा कंसल्टेंसीज हैं, कैरियर सेंटर स्किल्स ऑन एनसीएस, ये भी काफी सारे ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्होंने भी कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, जो वो भी उनकी भी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप ऑनलाइन इसी पोर्टल के थ्रू आप कैरियर स्किल्स के बारे में छोटे सर्टिफिकेट्स 2 मंथ का 3 मंथ का 6 मंथ का सर्टिफिकेशन यहाँ से आपको मिल सकती है, जितनी भी है। और इसी में भी आपको जब जिस आपको चाहिए जो हमारा जो डिजिटल लर्निंग हब्स हैं, जितने भी वहाँ जहाँ से आपको स्किल की पूरी जानकारी लेनी होती है, और वो सारा का सारा आप इसमें भी अपनी मतलब इंफॉर्मेशन फिल करके आपको ऑनलाइन आप स्किल्स यहाँ पे सीख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी हमारे रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं वो सारी की सारी कंसल्टेंसी इस पे आपको मिल जाएगी। और आप यहाँ पे घर पे बैठे जो लोग बाहर जाके फीस देके मतलब कंसल्टेंसी में जाते हैं, आप यहाँ पे भी बैठ के आराम से मतलब अपना उनसे जॉब की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्सेज कंटेंट्स, जो कोर्स का कंटेंट है, आप क्या कोर्स करना चाहते हैं, वो सारा का सारा इस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, इजिली अवेलेबल है। सिंपली आपको इसमें रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां से कहाँ पे आपको कौन सा वो कोर्स करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अप्लाइंग इन जॉब फेयर एंड इवेंट्स, आपको किस तरीके से जॉब फेयर में जाना है, इवेंट्स में करना है, सर्च जॉब फेयर्स इवेंट्स, जॉब फेयर इवेंट्स, इसमें पूरा का पूरा जब आप खोलोगे तो आपको एक पूरा कैलेंडर शेड्यूल मिल जाएगा कि इसमें कहाँ पे कब कब जो जॉब फेयर हो रहे हैं, ठीक है। उसमें आप जाके क्लिक करिए, कैलेंडर को देखिए, क्लिक ऑन द पार्टिसिपेशन बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। टेक द आईडी कार्ड फ्रॉम द पोर्टल इफ ऑफलाइन इवेंट, अगर ऑफलाइन इवेंट अगर वो कर रहे होंगे तो आपको इन केस वहां पे आईडी कार्ड भी ये क्या कर देंगे, इशू कर देते हैं। ऑनलाइन ही आपको कार्ड जनरेट कर देंगे, और फिर उसके बाद आप उस वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो, और उस आईडी को अपना कार्ड दिखा के आप उसमें पार्टिसिपेशन आपकी हो जाएगी।
गवर्नमेंट जॉब ऑन एनसीएस पोर्टल। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, इसमें एक आइकन खुलेगा जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो जितनी सारी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होगी, अगर ये तो पहले था कि प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पे आज आप जा सकते हो। और इस पोर्टल का जो मेन मकसद था, इसमें मेन मकसद ही यही था कि जितने भी हमारे जॉब सीकर है, चाहे उनको जॉब की इंफॉर्मेशन मिलनी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो। तो इसमें एक अलग से बनाया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स के लिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब है, वो सारा का सारा आपको अपने यूपीएससी के लिए अप्लाई करना होगा तो विद इन इसी पोर्टल के अंदर आपको वो लिंक मिल जाएगा। चाहे वो उसमें लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो आप वहां पे इसी पोर्टल के थ्रू ही उस अपने जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और पूरा का पूरा कैरियर की इंफॉर्मेशन जितनी भी हो, आप कैरियर के रिगार्डिंग, आपको एग्रीकल्चर के में जाना है, ऑटोमोबाइल्स में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है, कैपिटल गुड्स में, या ब्यूटी एंड विलिंगनेस, कहीं भी जिस जो मतलब ये जो एक पोर्टल है, हर स्टूडेंट्स को मतलब इसमें मेरे हिसाब से बच्चे को यहाँ पे रजिस्टर करके अगर वो यहाँ पे रजिस्टर कर ले तो आई थिंक विद इन 1 or 2 month he will get a गुड जॉब। मतलब वो उसको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। और अगर वो कोई 12th पास आउट है, कोई ग्रेजुएट है, अगर वो किसी डिफरेंट तरीके से अगर वो अपना कैरियर बनाना चाहता हो तो ये पोर्टल ऑनलाइन उसकी पूरी की पूरी हेल्प करेगा। ऑटोमोबाइल्स में हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्प करेगा कि कहाँ पे क्या आपको क्या जॉब मिल सकती है पूरी की पूरी। जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत सारे इसमें ऑप्शंस बताए हुए हैं कि एग्रीकल्चर में आपको कैसे किस तरीके से आपको इंजीनियरिंग में जाना है, क्या उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, कौन सी कॉलेजेस अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे कौन से कोर्सेज है, कितनी ड्यूरेशन का कोर्सेज है, उन कोर्सेज की क्या फीस रहती है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस पोर्टल के में मिल जाएगी। और जो मैं आपको कार्ड बता रहा था, ये से आईडी कार्ड है इसका जो एनसीएस का, एक इसमें आपको पूरा का पूरा जब आप रजिस्टर करोगे और आपको एक ऑनलाइन कार्ड मिल जाएगा जब आप रजिस्टर करोगे, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल, आपकी क्वालिफिकेशन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से आपका एक कार्ड बन जाएगा। और आप इस कार्ड को कहीं भी मतलब ये आपके लिए रेफरेंस के लिए रहेगा कि आपकी क्या आईडी है, और इस आईडी को आप ऑनलाइन कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे कुछ कई बार हमें कुछ बच्चे जो भी ग्रेजुएट हैं और कुछ टाइम के बाद जब वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं लेकिन उनके पास उनकी क्वालिफिकेशन बट अपडेट क्वालिफिकेशन आल्सो देयर थ्रू अपनी आईडी के थ्रू दोबारा इसमें एंटर करके लॉगिन पासवर्ड लगा के अपना उसको आईडी, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपनी जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसको अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो अपडेशन, आफ्टर अपडेशन जो उनका रिज्यूमे होगा उसके हिसाब से उनको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी जो उनको मिलना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद ये शॉर्टकट्स कैलेंडर्स हैं, इसके ऊपर आप यहाँ पे जब ये पोर्टल खुलेगा आप डायरेक्टली इसमें भी आप क्लिक कर सकते हो, जॉब में जाके कर सकते हो, कैरियर इंफॉर्मेशन में जा सकते हो। ये सारे छोटे छोटे इसमें जब आप गूगल में जाकर जाओगे पेज खोलो, शॉर्टकट में जाके पूरी की पूरी आपको इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल सकती है। और इसका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी भी आप टोल फ्री नंबर जो इनका एनसीएस पोर्टल का 1800 यहाँ पे आप टोल फ्री नंबर पे आप कभी भी कॉल भी कर सकते हो। इनकी जो आईडी है support.ncs@gov.in आप मेल कर सकते हो, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मॉडल कैरियर सेंटर्स जितने भी हमारे इंडिया में थ्रू आउट सारी की सारी आपको वहाँ पे मॉडल कैरियर सेंटर्स की जितने भी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप टेलीफोनिकली यहाँ पे मिल सकते हो। यहाँ पे जितना भी आपकी जो क्वेरीज होंगी वो आप यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। इसके किसी की क्वेरी हो, Dear students, if you have any query, please ask. Dear students, if you have any query related to National Career Service Portal, you can ask using the chat section.
चैट सेक्शन का इस्तेमाल करके बच्चे, या फिर अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में, क्वेरीज को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, कोई डाउट है आपके दिमाग में तो पूछ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट काउंसलर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के श्री सुरजीत कुमार जी हमारे साथ अवेलेबल हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सुरजीत जी, थैंक यू वेरी मच Thank you, thank you, for sir. being part of today's webinar. Now I would like to request Dr. Pankaj Gupta to present formal vote of thanks. Thank you, sir. Sir, am I audible? Yes sir, yes sir. Yes, yes, sir. Highly esteemed Principal, Government Degree College Kathua, Professor Asharam Sharma ji, revered resource persons of today's webinar, Assistant Director, District Employment and Counseling Center, Counseling Officer, Sir, sound is not District audible. Employment and Counseling Center, Shri Yes. Surjit Kumar ji. Yes sir. Yeah, ji sir. Am I audible now? Now audible, पहले बंद हो Sir, गई। am I audible? Yes sir, अब audible हो। Yes. Okay. So, highly esteemed Principal, Government Degree College Kathua, Professor Asharam Sharma ji, revered resource persons of today's webinar, Assistant Director, District Employment and Counseling Center, Maximum Gorki ji, and Career Counseling Officer, District Employment and Counseling Center, Kathua, Shri Surjit Kumar ji, Convener, Career Counseling and Placement Cell, Professor Rakesh Singh Jisrotia ji, respected faculty members, and my dear students. Very warm good afternoon to everyone. It is my privilege to have been asked to propose a formal vote of thanks on this occasion. I, on behalf of principal, faculty members, and students of Government Degree College Kathua, extend a very hearty vote of thanks to our webinar speaker, Maximum Gorke ji, for sparing her valuable time and enlightening us with new knowledge about employment scenario in J&K and different self-employment schemes by government departments. In her deliberations, she made us aware about different types of schemes and subsidies under different self-employment schemes. A very big thanks to Shri Surjit Kumar ji for his efforts towards job opportunities through National Career Services Portal. I am pretty sure that the precious knowledge shared by Ms. Maximum Gorki ji and Shri Surjit Kumar ji shall definitely help students in choosing their career in India and in globe. I hope the various schemes shared in today's webinar under self-employment scheme shall help students to become job providers rather than job seeker. I would like to thank Assistant Director Ms. Maximum Gorki ji for accepting our proposal and providing of us an opportunity to hear learned resource persons. And we expect similar type of collaborations in future also, because such type of sessions are very much required in this present time when candidates are more and the jobs are less. Thank you so much, ma'am. I would like to thank our worthy principal, Professor Asharam Sharma sir, for providing us permission and other necessary facilities required to interact with the students through digital platform. Also, thanks to all the students present here for paying your attention and learning. Thanks to committee members of Career Counseling and Placement Cell, Government Degree College Kathua, for extending full support in organizing this workshop and making the event a great success. And at last, I would like to thank all the learned resource persons again for enabling us to learn and such type of schemes and other NCS portal availabilities, or what are the various schemes that are available in that portal. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Pankaj Gupta sir. Thank you once again, Maximum Gorki KS, Assistant Director, District Employment and Counseling Center, Kathua, and Shri Surjit Kumar ji, Employment Officer, this Counseling Officer, District Employment and Counseling Center, Kathua. Thank you
once again thank you all students. सुरजीत जी, मैं एक बात करना चाहता था आपसे कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात कर जी रहे सर, जी थे, सर। तो क्या वो Yes, sir. हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए आप करवा सकते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट? कोई फिजिबिलिटी बन सकती है? आपने अपने जो प्रेजेंटेशन थी उसमें साइकोमेट्रिक Hello. टेस्ट की बात की थी, तो क्या Yes, sir, definitely. तो हम Definitely, sir, हम ये करवा सकते थैंक यू नेक्स्ट मंथ हम फरवरी में साइकोमेट्रिक टेस्ट एक अपने स्टूडेंट्स के लिए करवा लेंगे और होपफुली ठीक। आप हमें इसमें कोऑपरेट करेंगे. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.